ہاں میں یہ نمبر سے کال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں آواز صاف آتی ہے، اچھی آواز آتی ہے، اور تم ریکارڈنگ ہونے کے بعد مجھے سینڈ کرنا۔ ابھی میں وہاں بھی کو لگا رہا ہوں، ایک اصغر دیوبھنگی کا چیلا مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ ہاں ابھی وہ چیلا کو فون کر کے اصغر دیوبھنگی کو بھی فون کروں گا اور بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ لائن پہ رہو، بات کر رہا ہوں۔ ابھی چیلا کو فون لگا رہا ہوں، اس کے بعد اصغر دیوبھنگی کو۔ ریکارڈنگ چالو ہوتا ہے؟ ہاں ریکارڈنگ چالو کر دو۔ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ ہلو ہاں تو علی اصغر کا چیلا ہونا تم؟ تو علی اصغر کو فون لگاؤں؟ ہاں صبح کو تو کوشش کیا، لگا نہیں، اب پھر سے لگا رہا ہوں، دیکھو۔ ہاں علی اصغر کو لگا رہا ہوں۔ اصغر دیوبندی، ہیلو۔ ہاں ایک تمہارا چیلا بھی لائن پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تمہاری رسوائی آج ذرا سننا چاہتا ہے، تو اس لیے میں نے تم کو کال لگایا۔ سنو اصغر دیوبندی، میں نے صبح لگا تھا، اٹھا کیوں نہیں تو؟ نہیں میں سفر میں تھا۔ ہاں میں نے کیوں لگایا تھا پوچھا نہیں مجھے؟ میں نے جب تم کو کال لگایا تھا تم نہیں اٹھائے، کب لگایا تھا؟ صبح لگایا تھا۔ چلو بات وہ لمبی مت کرو۔ سب سے پہلے میں لگایا، کیوں لگایا تھا؟ ہاں تو طرح سے بات مت کرو، میں نے تم کو اچھی طرح بات کی ہے۔ سب سے پہلے میں نے فون لگایا تھا، تو نے لگایا تھا؟ وہ یاد نہیں ہے یار، تم بات کرو ابھی۔ اب جھوٹ کوئی نہیں بولتا، جھوٹ کوئی نہیں بولتا، تمہارے جو چیلا ہے وہ بھی گواہ ہے۔ وہ مجھے بول۔ دیکھو اصغر دیوبندی کا چیلا، دیکھو میں کس طرح بات کر رہا ہوں اور تمہارے اصغر دیوبندی کس طرح بات کر رہا ہے، دیکھو۔ سامعین دیکھیں۔ ہاں آپ سنو۔ بول رہا ہوں صبح فون لگایا تھا، وہ مجھے پوچھ لو۔ ہاں تم یہ بتاؤ تمہارے براہین قاطعہ میں لکھا ہوا ہے۔ فون لگایا تھا تو پوچھے گا نہیں مجھ سے؟ ہاں میں فون اس لیے لگایا تھا، صبح میں نے فون لگایا تھا۔ نہیں تم لگائے یا نہیں، میرے پاس تمہارا کوئی مس کال نہیں آیا۔ صبح میں نے ابھی بول رہا کہ ہاں لگایا تھا تو بول رہا مطلب۔ ہاں سب سے پہلے میں لگایا تھا صبح۔ آپ دیکھیے وہ موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے اصغر دیوبندی۔ آپ صبح کو کیوں لگایا، کون لگایا، کب لگایا، کیوں نہیں اٹھایا، اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو کیوں نہیں اٹھایا بول؟ میں مصروف تھا اس لیے نہیں اٹھایا۔ جب مصروف تھا میں کیوں فون لگایا تھا، پوچھے گا نہیں تو مجھے؟ ہاں نہیں پوچھے گا مجھے تو؟ ضروری نہیں ہے، تم تو فالتو کسی کو فون لگاتے رہتے ہو۔ میرا سوال کا جواب ضرور پڑی ہے۔ ہاں میں تم کو کال کیا، تمہارے چیلے نے کہا کال کرو۔ نہیں وہ بات نہیں، آپ وہ بات نہیں۔ تمہارا چیلا جب میں نے فون کیا تو بول رہا ہے میرے سوال۔ نہیں میں تم سے سوال پوچھوں گا، تم جواب دو گے۔ اتنے دن سے جتنے دن سے تم سے بات ہو رہی ہے کبھی بھی تم نے جواب نہیں دیا، ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ آج میں تم سے سوال کروں گا، تم جواب دو گے۔ موضوع پہ آتے ہیں۔ میرا سوال ہے، براہین قاطعہ میں تم لوگوں نے لکھا ہے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے۔ نہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، تم نے براہین قاطعہ میں لکھا ہے، تمہارے ملاؤں نے۔ اب میرا دعویٰ یہ ہے، سنو پہلے میرا یہ اعتراض۔ میں نے کیوں فون کیا، جواب نہیں دے گا؟ نہیں تم دوبارہ کال کرنا، تم کس لیے کال کیے اس پر بھی بات ہوگی۔ میں نے جب فون کیا بات تو ہماری ہوتے رہتی ہے تم سے۔ دوبارہ فون کرنا۔ نہیں میں اس بارے میں بات کروں گا، میں نے ابھی کال کیا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ جب یہ فون کرتا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ تم ہمارا فلم۔ دیکھیے سامعین اکرام، اس کو جواب دینا نہیں ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کے ملا۔ میرا سوال کا جواب دے، جب میں نے فون کیا تو میں فون کیوں کیا تھا، مجھے کیوں نہیں پوچھ رہا؟ تو نے فون نہیں کیا نا؟
अभी बोल रहा है कि मैं मसरूफ था, बोल रहा है कोई नहीं कि झूठा मक्का सुबह तुम्हारा तेरा कॉल आया ही नहीं, मैं मसरूफ था। किस किस का कॉल आया? तू और किसी के नंबर से कॉल किया होगा? फोन किया आपके पास, आप फोन ही ना। हाँ, मेरे पास इसका कोई मिस कॉल नहीं है। हो सकता है इसके किसी चेले के नंबर से कॉल किया होगा। बहुत सारे मिस कॉल हैं, लेकिन इसके नंबर से कोई मिस कॉल नहीं है। इसके नंबर से मेरे पास कोई मिस कॉल नहीं है। अगर मिस कॉल नहीं तो कैसे बोल रहा है कि मसरूफ था मैं? हो सकता है तेरे चेले ने कोई मिस कॉल दिया होगा। बहुत सारे मिस कॉल है। कैसे बोला मैं मसरूफ था? हाँ, मैं मसरूफ था तो बोला मसरूफ था। क्या बोल रहा हूँ? देखिए सामीन इकराम किताब पर बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इधर उधर की बकवास कर रहा है। इधर उधर की बकवास करके भागना चाहता है। ये असगर देवबंदी की यही औकात है। देखिए सामीन इकराम, ये देवबंदी काफिर, मौजू पे बात कर रहा हूँ, देवबंदी की कुफरिया अकीदे पर बात कर रहा हूँ। लेकिन देवबंदी इतना बेशर्म है, ये अपने अकाबिरीन की कुफरिया अकायद पर बात करना नहीं चाहता है। इनके किताब बराहीन कातिया में शैतान का इल्म नबी से ज्यादा बताया है। अब इनकी ही दूसरी किताब में लिखा है, जो नबी होता है तो सबसे बड़ा आलिम होता है। अब बराहीन कातिया में लिखा है कि शैतान सबसे बड़ा आलिम, और दूसरी किताब में लिखा है सबसे बड़ा आलिम नबी होता है। तो देवबंदियों के नजदीक शैतान नबी है। माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब इसका जवाब दे असगर देवबंदी। जवाब दूं? सुनेगा? दे जवाब दे। इसमें हिम्मत है? हाँ जवाब दे जल्दी, बात मत बढ़ा। दरमियान में बोलेगा नहीं ना? नहीं, जब तक मैं तुझे नहीं बोलूं तो बोला। हाँ मौजू पे, मौजू से हटना नहीं, दूसरी तरफ नहीं जाना। मौजू से हटेगा तो मैं टोकूंगा। बोल। फिर बोल रहा है तूने मुझे सवाल किया है बराहीन कातिया की इबारत पर, है ना? अच्छा, अब तुम्हारा वसूल ये है हिसामुल हरमैन अल मुखालिफिन। अबू अहमद मौलाना मोहम्मद अनस रज़ा कादरी लिखता है सफ़ा नंबर 36 पर, अगर कोई छोटा मोटा देवबंदी वहाबी मौलवी अपने बड़े मौलवियों का मवाद कॉपी करके किताब लिखे, उसका जवाब न दिया जाए कि इस तरह के मौलवियों का जवाब देना अपना वक्त ज़ाय करना है। उनके लिए हमारे बुजुर्गों के जवाबात ही काफी है। हाँ, तुम्हारा अबू अहमद मोहम्मद अनस रज़ा कादरी वसूल बता रहा है, जब किसी इबारत और किताब पर जब बड़ों ने जवाब दे दिया है तो छोटों की जिम्मेदारी चीज को जवाब दे। रज़ा खानी अपने मौलवियों और अपने धर्म का वसूल का खून करते हुए ऐसे सवाल कायम कर दिया जिसका जवाब हमारे अकाबे हमारे बड़ों ने दे दिया। तब इस पर जलालुद्दीन जो अपने वसूल का खून किया है, उस पर मेरे पास एक किताब है। किताब का नाम है हदिये बिरलवियत। किताब का नाम है हदिये बिरलवियत पर एक नजर, सफा नंबर 153। उसमें लिख रहा है कि ऐसा मक्कार, दज्जाल और धोखाबाज है कि मुसल्लमा वसूलों का खून करते हुए भी उसे जर्रा पर हया नहीं आती। अली रजा, ये जलालुद्दीन जो है रजा खानी जो है बेलवी ओडिया बंगाली, वो अपने मुर्गियों का धर्म का वसूल का खून करके दज्जाल, मक्कार, धोखाबाज और मुसल्लम वसूल का खून करते हुए उसे शर्म बेगैरत बेशरम है। अच्छा, बात मुकम्मल हो गई तेरी बात। बिरंजी मौलवी कह रहा है, कौन कह रहा है? अबू अब्दुल्ला नक्शबंदी कह रहा है, यानी जलालुद्दीन जो है धोखाबाज है, मक्कार है, दज्जाल है और बेहया बेशरम है, क्योंकि इसने अपने बड़ों का और धर्म का वसूल का खून किया है। खून क्या किया है? तो उसका आजिम कह रहा है, जब कोई किसी मसला दोहरा रहा है। देखिए सामीन इकराम, ये अपना जवाब, ये जो एतराज किया ये बार बार दोहरा रहा है। दोहराने में टाइम जाया हो रहा है और ये अपनी बातों को खामाखा फुजूल बातों में बढ़ा रहा है। सामीन इकराम, पहली बात इसने, मैंने जो उस पर एतराज किया, सवाल कायम किया, उसने अपने सवाल का जवाब देने के बजाय, मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय वो इधर उधर भाग रहा है। और हमारा उसूल ये हरगिज नहीं है कि किसी बदअकीदों का जवाब ना दिया जाए, बल्कि आला हजरत का उसूल है। आला हजरत फरमाते हैं फतवा रिजविया के अंदर कि बदअकीदों को रद्द करना, बदअकीदों का रद्द करना फर्ज आजम है। तमाम फर्ज से बड़ा फर्ज है बदअकीदों का रद्द करना, अवाम के अकायद की हिफाजत करना, क्योंकि फर्ज वाजिबात बाद में, पहले अकायद है। तो बदअकीदों का जवाब देना, बदअकीदों की बदअकीदगी गुमराही को उजागर करना,
हमारे लिए फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज है, इसलिए हम बदअकीदों का, वहाबी देवबंदी काफिरों का रद्द करते हैं। मैंने ये जो बताया बराहीन कातिया में देवबंदी का कुफर, देवबंदी शैतान को नबी मानता है, इसका देवबंदी काफिर ने जवाब नहीं दिया। ये असगरी बेगम ने अपने अकाबिरीन को काफिर मानता है, काफिर मानता हुआ इसने बराहीन कातिया और इनकी किताब तहजीरुन नास, दोनों किताब से साबित होता है इनके नजदीक शैतान इनका बड़ा पैगंबर है, इनका नबी है, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि बराहीन कातिया में लिखा है। अब मैं बोलूं? हाँ बोल, इसी टॉपिक पे बोल, तू जवाब दे, शैतान तेरा नबी है क्या, ये मैं जवाब दे, बोल। जवाब दे रहा। हाँ हेलो, कौन है? सामीन, इसने कहा कि शैतान तुम्हारा नबी है और कहा कि बराहीन कातिया में शैतान को नबी माना गया। अस्तगफिरुल्लाह। मैं सिर्फ जलालुद्दीन नहीं, बेरेलवी आला हजरत से लेकर अदना हजरत तक तमाम रज़ा खन्नास की ज़ुर्रियत को मैं चैलेंज करता हूँ। बराहीन कातिया में शैतान को नबी माना गया, मुझे इबारत पर वाज़ेह कर दी। हाँ मैं बोलूँ, मकाबिसुल मजालिस, मकाबिसुल मजालिस तुम्हारे गंगोही का नानो, रशीद अहमद गंगोही का पीर भाई का है, हमारा नहीं है। मकाबिसुल मजालिस देखिए, आपने देवबंदी मुल्लाओं के झूठी किताब का हवाला दे रहा है। मकाबिसुल मजालिस और जितने देवबंदी अकाबिर की लिखी हुई किताब है, गंगोही के पीर भाई की किताब है, वो हमारा मोतबर किताब नहीं है। एक झूठी बात ये देवबंदी ने पेश किया, झूठी किताब का हवाला मकाबिसुल मजालिस पेश करके वो हमारी तरफ मंसूब करेगा, मैं जानता हूँ। दूसरी बात, इसने जो चैलेंज किया है, तमाम ज़ुर्रियत को चैलेंज किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी की तरफ से मैं एक अदना खादिम काफी हूँ इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। मैं दो किताब के बारे में बताया, लेकिन ये एक किताब जो है कौवे की बिरयानी समझ के देवबंदी काफिर खा गया है। मैंने क्या कहा था, तहजीरुन नास और बराहीन कातिया दोनों किताब से मिलाकर साबित होता है कि शैतान इनका नबी है। क्योंकि मुकम्मल होने दे बात मुकम्मल होने दे, बीच में बात नहीं करना शैतान की तरह। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। देखिए असगर देवबंदी, सामईन इकराम देखिए, असगर देवबंदी ये एक किताब को, दो किताब के हवाले में से एक किताब को कौवे की बिरयानी समझ के, नानी माँ का पाखाना समझ के तबर्रुक, नानी माँ का पाखाना को तबर्रुक समझ के खा गया है। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, देखिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ। देवबंदी बराहीन कातिया में लिखता है, देवबंदी मौलवी रशीद अहमद गंगोही बराहीन कातिया में लिखता है कि शैतान और मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाफ नुसूस कतइया बिला दलील साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान और मलकुल मौत का, ये मलकुल मौत को ये सिफात नस्स कतई से साबित है। इसी इबारत पर एक देवबंदी मुफ्ती को भागना पड़ा, कॉल कट करके भागना पड़ा। रियासत देवबंदी मुफ्ती रियासत देवबंदी भागा मेरे सामने, और ये असगरी बेगम भी आज भाग रहा है। इस इबारत से साबित हो रहा है कि शैतान, बात मुकम्मल होने दे, शैतान और मलाकुल मौत को नुसूस कतइया से साबित कर रहा है और नबी के लिए शिरक मान रहा है। अब शिरक क्या होता है, इस टॉपिक पे बात करेंगे तो देवबंदी शिरक का जवाब नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह की जातो सिफात में अगर नबी को शरीक करे तो शिरक होता है, तो शैतान को शरीक करने से भी शिरक होगा। यहाँ शैतान को अल्लाह की सिफात में शरीक मान रहा है, लेकिन नबी को मानने पर शिरक का फतवा दे रहा है और शैतान की सिफात नस्स कतई से साबित कर रहा है, शैतान का इल्म को नस्स कतई से साबित कर रहा है। और दूसरी बात, वो बोल ही नहीं रहा है, वो इस टॉपिक पे नहीं बोल रहा है, वो इधर से उधर अपनी किताब छोड़कर इधर क्यों दूसरी तरफ क्यों जा रहा है, उसको ले रहा हूँ फिर से। अब पहले तूने कहा कि मकाबिसुल मजालिस देवबंदी किताब है ना? असगर देवबंदी सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, मकाबिसुल मजालिस तुमने किताब का नाम लिया, उस किताब पे बात नहीं हो रही है। बराहीन कातिया और तहजीरुन नास पे बात हो रही है। बराहीन कातिया में सबसे बड़ा आलिम शैतान को माना गया और तहजीरुन नास में लिखा है नबी सबसे बड़े आलिम होते हैं। जब नबी सबसे बड़े आलिम होते हैं और बराहीन कातिया के हिसाब से सबसे बड़ा आलिम कौन है? शैतान। तो तुम्हारे नजदीक शैतान नबी हो ही नहीं। देवबंदी काफिर जवाब दे। असगरी बेगम, असगरी
से आती है दुआ बन के। हेलो, हाँ असगर को लाइन पे ले रहा हूँ, रुको। जी लीजिए। आप काट कर दिए फुल डर के मारे। मैंने कौन कट कर दिया पता चल रहा है, देखो सबको पता चलेगा, रिकॉर्डिंग आ रहा है सामने। वो बोलते गए, हम लाइन पे थे उस टाइम। असगर फोन काटे क्यों भागा तू? फोन तुमने काट के भागा, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। कौन काट के भागा साबित होगा, कौन काट के भागा साबित होगा। रुक लाइन पे रुक। गुफ्तगू जारी थी, हमारी गुफ्तगू चालू थी हमारे उस साथी के साथ। मेरी गुफ्तगू जारी है। बराहीन कातिया और तहजीरुन नास दोनों तुम्हारी किताब है। बराहीन कातिया में अब तुम सुनो, पहले 2 मिनट मेरी बात सुनो, फिर 2 मिनट तुमको बोलने दूंगा। और इसी टॉपिक पे बात करना, इसी किताब पर बात करना। दूसरे टॉपिक दूसरे किताब पे जाओगे तो भगोड़ा शामिल हो जाओगे, भगोड़ा साबित हो जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ मकाबिसुल मजालिस हमारा नहीं है, मकाबिसुल मजालिस देवबंदी काफिरों की है किताब। आप सुनो, ये किताब है तज़किरे मौलाना अहले सुन्नत जमात लाहौर। नहीं, ये सब किताबों से, किताब की लिंक मत भेजो। तुम्हारे अकाबिरों की, तुम्हारे बड़े अकाबिरों की किताब है, तुम्हारे बड़े अकाबिरों की किताब है। आप सुनो, हम बरेलवी हैं, हमारे नजदीक आला हजरत और आला हजरत की खुलाफा की किताब हुज्जत है। और इनसे अकायद से अगर टकराए तो हम दूसरी किताबों को रद्द करते हैं। आला हजरत से जो बगावत करे वो बरेलवी नहीं हो सकते। तुम बात कर रहे हो बरेलवी से, अगर बरेलवी हमें कह रहे हो, शुरू में खिताब बरेलवी से कह चुके हो, बरेलवी की किताब में जो है उसी को मानना पड़ेगा तुमको भी। हम बरेलवी की किताब से हमारे अकीदा साबित करेंगे, समझे? तुमने हमको बरेलवी कहा। आप सुनो, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, देखिए सुन नहीं रहा है ये देवबंदी काफिर, सुन नहीं रहा है, अपने अकाबिर की कुफरिया अकीदा को दिफा नहीं कर पाएगा, अपने अकाबिरीन की कुफरिया अकीदा को ये हक पे साबित नहीं कर पाएगा, इसलिए ये सिर्फ इधर उधर भागने की बहाना बना रहा है। देखिए, मैंने किताब पहली बात किया था, पहले ही बताया था, बराहीन कातिया में लिखा हुआ है सबसे बड़ा आलिम कौन है? शैतान। सबसे बड़ा आलिम शैतान है इनके नजदीक। अब मैं किताब पढ़ के बता रहा हूँ, शैतान मलकुल मौत के हाल देखकर इल्म मुहीत जमीन का फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खिलाफ नुसूस कतइया बिला दलील साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान मलकुल मौत को यह सिफात नस्से कतई से साबित है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन से नुसूस कतइया है जिससे एक शिरक को साबित किया जा सके? तो यहाँ शैतान के लिए सिफात मान रहा है, अल्लाह की सिफात में शैतान को शरीक मान रहा है, लेकिन नबी को मानने पर शिरक लगता है इनको, शैतान को मानने पर शिरक नहीं लगता। यानी शैतान इनको, इनके नजदीक खुदा के बराबर है, खुदा की सिफात में शरीक है माज़अल्लाह। और दूसरी बात, इन्होंने यहाँ शैतान को सबसे बड़े आलिम कहा, और यही किताब, इसी देवबंदियों की किताब तहजीरुन नास में लिखा हुआ है, नबी उलूम में मुमताज होते हैं, उलूम में सबसे बड़े होते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि देवबंदी शैतान को नबी मानते हैं, इसीलिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा फख्र आलम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये लोग गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि इनके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि इनके नबी शैतान लाइन है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे देवबंदी काफिरों से हम दूर रहे और तमाम उम्मत को बेदार करे। और सारे देवबंदियों को मैं ललकारता हूँ, बेशर्म देवबंदी काफिरों, देव के बंदरों, सहारनपुर से लेकर नजद तक तमाम देवबंद की जुर्रियत को मैं कहता हूँ, तुम्हारे मुल्लाओं के गिरिबान तुम क्यों नहीं पकड़ते? तुम्हारे मुल्ला मोहम्मद अरबी के बजाय शैतान को नबी मान रहा है, नबी शैतान को साबित कर रहा है और शैतान को खुदा की सिफात में शरीक साबित कर रहा है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला देवबंदी काफिरों को हिदायत दे, अगर जिसके नसीब में हिदायत नहीं है अल्लाह ताला उसको गारत करे, बर्बाद करे, आमीन। तू पहले मेरा सुनेगा तो फिर मैं तेरा सुनूंगा। 1 मिनट तू सुनेगा, 1 मिनट तू सुनेगा, मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद तू बोलेगा, फिर मैं सुनूंगा,
हाँ, देवबंदी किताब में बराहीन कातिया में लिखा हुआ है, शैतान और मलाकुल मौत का हाल देखकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खिलाफ नुसूस कतइया बिला दलील साबित करना कौन सा ईमान का हिस्सा है? शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान और मलाकुल मौत को यह सिफात नस्स कतई से साबित है। यानी शैतान के लिए इल्म मुहीत यानी दुनिया के कोना कोना नजरों के सामने होना, दुनिया के हर जर्रा जर्रा नजरों के सामने होना, इसे कहते हैं इल्म मुहीत। यह शैतान के लिए साबित कर रहा है, लेकिन नबी के लिए साबित नहीं कर रहा है। शैतान के लिए साबित कैसा कर रहा है? कह रहा है कि शैतान को यह सिफत नस्स कतई से हासिल है, लेकिन नबी को मानेंगे तो शिरक हो जाएगा। अब इन देवबंदी काफिरों से पूछा जाए शिरक किसे कहते हैं? शिरक कहते हैं अल्लाह की जात और सिफात में शरीक करना। आप बताओ, अल्लाह की जात और सिफात में शैतान शरीक है? शैतान भी तो मखलूक, किसी भी मखलूक को शरीक करने से शिरक होता है। अब ये देवबंदी काफिर शैतान को शरीक कर रहा है, इसका मतलब ये है देवबंदी का शैतान खुदा भी है और रसूल भी है। क्योंकि तहज़ुरुन नास में देवबंदी काफिर लिखता है, देवबंदी काफिर कासिम नानुतुबी जो लवातित करने वाला खबीस था, उस कासिम नानुतुबी ने लिखा है कि शैतान, कासिम नानुतुबी लिखता है तहज़ुरुन नास के अंदर कि अंबिया मुमताज होते हैं, अंबिया मुमताज होते हैं, उलूम में मुमताज होते हैं, यानी आलिम नबी सबसे बड़े आलिम होते हैं। अब ये बताइए बराहीन कातिया के अंदर, बराहीन कातिया के अंदर शैतान को, बराहीन कातिया के अंदर शैतान को सबसे बड़ा आलिम मान रहा है, और दूसरी किताब में दावा कर रहा है कि जो सबसे बड़ा आलिम होगा वो नबी होगा, सबसे बड़ा आलिम होगा वो नबी होगा। ये इस किताब का जवाब देने के बजाय, इस किताब का जवाब देने के बजाय असगरी बेगम इधर उधर भाग रहा है। कभी मकाबिसुल मजालिस पे जाते हैं, कभी किसी और मौलवी की तरफ जाते हैं, कभी किसी और मौलवी की तरफ जाते हैं। लेकिन हमारा मौकिफ है कि आला हजरत हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है, हमारे लिए, हमारे मसलक में आला हजरत हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है। आला हजरत ने जो फैसला कर दिया, आला हजरत के फैसला हमारे लिए हतमी फैसला है। बाकी दूसरे मौलवी अगर इधर उधर की कोई लिखा है तो उसको हम एतबार नहीं करते, वह हमारे नजदीक गैर मोतबर है। और मकाबिसुल मजलिस का जो हवाला दे रहा है, मकाबिसुल मजलिस देवबंदियों की किताब है, क्योंकि रशीद अहमद गंगोही जब गुस्ताखी किया था, बहुत सारे सुन्नी आलिम रशीद अहमद गंगोही के मुखालिफ हुए थे, और बहुत सारे गुमराह मौलवी जो पहले सुन्नी थे रशीद अहमद गंगोही की हिमायत करने की वजह से वो भी मुर्तद हो गए रशीद अहमद गंगोही की तरह। जैसा रशीद अहमद गंगोही मुर्तद है, इसी तरह मकाबिसुल मजालिस का जो मुसन्निफ है वो भी देवबंदी है, क्योंकि रशीद अहमद गंगोही की वो हिमायती है। वो रशीद अहमद गंगोही काफिर था, उस काफिर की हिमायत करते हुए दूसरे ये मकाबिसुल मजालिस का जो मुसन्निफ है वो भी मुर्तद है। अब जो सबूत दे दिया मैंने, लेकिन तू पहले बराहीन कातिया पर बात कर, बराहीन कातिया पर तू बात कर, बराहीन कातिया पर बात कर। हमारे आला हजरत क्या फरमाते हैं? बदअकीदों का रद्द करना हमारे लिए फर्ज आजम है, तो हम फर्ज आजम अदा कर रहे हैं। हम कोई हमारे उसूल को हम नहीं तोड़ रहे हैं, हमारे उसूल ही है बदअकीदों का। हमारे आला हजरत ने क्या उसूल दिया है? दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, गैज़ में जल जाए देवबंदी के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या, देव के बंदों से हमको क्या मतलब, हम हैं अब्द मुस्तफा फिर तुझको क्या। कल मुजावर